So tell me, dash control sequential instructions. What is the answer? Give me the answer now, fast. Give the answer fast. दिया आंसर मालूम है? मैम ALU. ALU. See, sequential instruction execution interpreting, यहाँ तक ALU करता है. Guiding the data flow through computers memory, ये कौन करता है? ALU करता है या CU करता है? मैम ये यहाँ से CU करता है, interprets the instructions and guides data flow through the computer Control memory. unit के अंदर ही ALU है. Yes मैम. इसका आंसर फिर क्या होगा? Control unit. That you people have not gone through the sample paper that I have already sent you. Have you all gone through it? I'm not sharing my screen right now. No Have मैम. you all gone through it? No. Why is it a no? Why didn't you go through the sample paper that has already been shared? And simply you people are not studying at all. It's clearly evident from the exam. Your OTBA exam, the way you people have given the exam, it's very very evident कि आप लोगों ने बिल्कुल किताब को छू के भी नहीं रखा. And from March you are going to have your final exams. So tell me, what will be its answer? Will it be ALU or CU? CU. Control unit. Okay. So let's move on to the next question. Identify the device which is being used in manufacturing industries to create prototypes of products. Their usage is also being explored in the medical field, particularly for developing body organs. कौन सा डिवाइस है जो बॉडी ऑर्गन्स डेवलप करने में मेडिकल फील्ड में यूज हो रहा है? मेडिकल फील्ड में कौन सा यूज हो रहा है? Rest of the class is only silent. Ma'am, 3D printers. 3D printer. Any other answers? काफी अच्छा सोचा हुआ है श्रेष्ठा ने. At least I'm happy. Any other answers? "3D printer" is the correct answer. Okay. Next, Rajni wants to buy a laptop with the following configuration. Inspiron 15 3584 laptop, 7th generation, Core i3, 4GB, 1TB, 256GB SSD, Windows 10. What is the full form of SSD? मैंने आपको बताया था कि ये नया कॉन्फ़िगरेशन है. दिस इज द लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन. आजकल HDD से ज़्यादा SSD बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. What is the full form of SSD? This is something which you definitely need to know. It is solid state device. What is it? Solid state device. Okay, so I'm giving the answer in the chat box. Okay, solid state device. SSD का full form है. Next, identify the invalid string from the following. Ma'am, Which one D. is the string? D. डबल कोट में हेलो, सिंगल कोट में हेलो, यहाँ पे 3 कोट्स हैं उसमें हेलो, या फिर सिर्फ पैरेंथेसिस में हेलो. स्ट्रिंग कौन सा नहीं है इसमें?
So D is the D. answer. Yes. Yes, D is the answer. Moving on, write the following expressions in Python. 2/3 b square plus 2 dot dot का मतलब मल्टीप्लिकेशन c dot d. इसको पाइथन में लिखना है तो कैसे लिखोगे? How are you going to 2/3 हाँ, chat box में लिखो. okay ma'am. All of you write down the answers in the chat box. श्रेष्ठा, मैम सुपर हाँ वंशिका. सुपर स्क्रिप्ट का क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं मुझे ये नहीं पता. बस हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट में डाल के लिखेंगे ना? हाँ बिल्कुल, पाइथन बोल रहा है वो, तो प्रिंट में ही लिखोगे. तो मैम सुपर स्क्रिप्ट कैसे जाएगी? सुपर स्क्रिप्ट सोचो एक बी बार के कैसे ऊपर जा सकता है. एक बार सोचो कैसे जा सकता है. वो जैसे कि हम नॉर्मली अगर चैट में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, वो ट्रायंगल सा बना होता है जो, वही जाएगी. बिल्कुल. देखो, ओके. ट्रायंगल नहीं होता है वो पावर वाला 6 नंबर की के ऊपर जो होता है ना. हाँ, यस मैम. मैम ये ना टाइप नहीं हो जा रहा, मैं मुंह से ही बोल दूं, ये पता नहीं बार बार इसमें ही अपने आप ही ऑटो करेक्ट हो रहे हैं. ओके ठीक है, बताओ. मैम 2 फिर /3 फिर पैरेंथेसिस b स्टार 2 प्लस 2 स्टार c स्टार d पैरेंथेसिस क्लोज. Okay, so I'll type the answer for you. Okay, so it is somewhat like 2/3 उसके बाद into उसके बाद b स्क्वायर उसने कहा है ना, तो b into b. ओके, उसके बाद प्लस देन 2 into c into d. Okay, this is one way, or it is right even if you give in this way 2/3 उसके बाद into and then b, फिर 2 बार एस्ट्रिक दे दो and then 2, फिर then plus then 2 into c into d. Check both the answers, all of you. Yes, good, Shrestha. Next, solve the OR part also. A is equal to 2.0, B is equal to 3.4, C is equal to 4.8. Now print A minus B less than B minus C is double equal to A minus B greater than B minus C. मतलब ये इसका आंसर जो है हमेशा ये डबल इक्वल टू अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो बुलियन में ही हमेशा तुम्हारा आउटपुट देगा, दैट इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो -1 और 1.4 हैं, ये दोनों आंसर्स आपके जो हैं, दीज टू स्टैंड इन वैल्यू. ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे. तो अब बस चेक करो कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा. A is 2, B is 3.4, C is 4.8. A minus B, 2 minus 3.4 कितना होता है? -1.4. Okay, -1.4 is less than B minus C. B minus C कितना हुआ? B minus C कितना होता है? -1.4. यस मैम.
Okay, now this left hand side is perfectly equal to a minus b. a minus b कितना है? -1.4. ग्रेटर दैन b माइनस सी. b माइनस सी कितना है? -1.4. ठीक है, तो हर तरीके से सबका आंसर -1.4 इट्स कमिंग, सो दिस विल स्टैंड ट्रू. Okay, so this will stand true. So the answer will be true to this. वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 1.4 देके बैठा हुआ है, बट इट इज ऑल -1.4 और डबल इक्वल टू मतलब हमेशा वो चेक करेगा that LHS is equal to RHS. If yes, then it will give true. If no, it will give false. Okay, next F. How many times will the following loop run? अब हर कोई अपने नोटबुक्स निकालो, नोटबुक्स या पेन एंड पेपर पकड़ के now write down the dry run, do the dry run और चेक करो, काउंट करो कि कितने बार लूप के अंदर जा रहा है. That will give how many times the loop will run. Ma'am, 4 times. Okay, so one answer is 4 times. What do the others have to say? एक बार वंशिका समझा दो कैसे 4 times हुआ है. I in range 1, so 1 is included. 11 से पहले बंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब 10 तक ही आएगा. और स्टेप इज 3 नंबर्स को स्टेप करते हुए आगे बढ़ता जाएगा. ओके, सो I is equal to I plus 2, print I. So first I Yes, is ma'am. 1. 1, 4, 7 and 10. I is equal to I plus 2. So 1 plus 3 हो गया, 3 आ गया वहां पे. प्रिंट I, so प्रिंट हो जाएगा 3. फिर I 1 से क्या बन जाएगा? 4. ओके, सो 4 के लिए फिर से अंदर जाएगा. फिर 4 के बाद 5, 6 एंड 7th नंबर को फिर से लेगा, फिर से अंदर जाएगा. 7 स्टिल देयर. फिर उसके बाद I बन जाएगा 8, 9, 10 इज स्टिल देयर, तो वो अंदर जाएगा. ओके, सो ओवर 4 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग? सो इट इज गोइंग 4 टाइम्स. पहले 1 के लिए जा रहा है, उसके बाद 3 के लिए, उसके बाद 7 के लिए, उसके बाद 10 के लिए. ठीक है, 10 के बाद वो बन जा रहा है 13. ठीक है, तो 13 के लिए वो अंदर नहीं जाएगा. ओके, सो इट इज गोइंग इनटू द लूप 4 टाइम्स. मैम, हाँ, फर्स्ट हम आई में डालेंगे 1 तो वो 3 हो जाएगा. फिर हम 4 डालेंगे तो वो 6 हो जाएगा. फिर हम 7 वो डालेंगे. आउटपुट की बात कर रहे हो, आउटपुट की बात कर रहे यस हो. मैम. आउटपुट अलग है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग, उसके लिए आई की वैल्यू अलग है. ओके मैम. ठीक है, आउटपुट की वैल्यू अलग है, आई की वैल्यू अलग है. आउटपुट में पहले तुम्हारा 1 जब है, अब आईस वैल्यू इज 1, तो वो बन जाता है 1 plus 2 मतलब 3. आउटपुट में 3 आएगा. व्हेन आईस वैल्यू इज 3, ठीक है, 1 2 3 4, सॉरी 4, सो 4 plus 2 तो तुम्हारा 6 आ जाएगा आउटपुट में. ठीक है, फिर तुम्हारा आई का वैल्यू बनेगा 7, तब आउटपुट में आएगा 9, फिर आई का वैल्यू बनेगा 10, फिर आउटपुट में आएगा 12. Okay, done. Next, predict the output of the following Python code snippet.
A is equal to, now there are list of elements 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 and A देखो first कुछ नहीं है, start कुछ नहीं है, stop कुछ नहीं है, step is 3. Okay, there is no start, there is no stop, step is 3. मतलब start हमेशा 0 से ही होगा. अगर start कुछ भी mention नहीं है, that means it is starting from 0. Okay, so first output में 0 आएगा. Okay, second में 44, 1 2 3 44 आएगा या 33 आएगा? मैम 0 आ 44 गया, 0 आ गया. उसके बाद 1 2 3 थर्ड एलिमेंट. स्टेप 3 का मतलब है 3 छोड़ के नहीं, थर्ड एलिमेंट. ठीक है, तो ये 0 हो गया. उसके बाद 1 2 3 सो 33. उसके बाद 1 2 3 66. उसके बाद 1 2 3 99. इज दिस क्लियर? स्टार्ट होगा 0 से. ओके, उसके बाद 1 2 3 33, 1 2 3 66, 1 2 3 99. Because step is 3. समझ में आया? Is it clear? yes ma'am. Okay. Next, question number 2A. Name any 4 tools or instruments used to capture data in digital format in banks, shopping malls, offices, schools, etc. Ravi bought a new printer from Amazon. He was able to attach it to the computer but was not able to take a printout. He needs to install software. Name it. Is it a system or application software? उसने एक नया प्रिंटर वो लेकर आया अमेज़न से. अब कंप्यूटर के साथ उसने अटैच कर दिया, मतलब यूएसबी केबल से उसने सिस्टम को अटैच कर दिया, बट प्रिंट आउट नहीं ले रहा है. प्रिंट आउट लेने के लिए क्या चाहिए? प्रिंटर का ड्राइवर चाहिए. ओके, ड्राइवर हैज टू बी इंस्टॉल्ड. सो ड्राइवर्स क्या होते हैं? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं? ड्राइवर्स आर ऑलवेज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. जैसे कि साउंड का ड्राइवर होना जरूरी है, वरना साउंड नहीं आता सिस्टम से. ठीक है, फिर यूएसबी ड्राइवर्स होने चाहिए, वरना यूएसबी पोर्ट होते हैं लेकिन यूएसबी पोर्ट काम नहीं करेंगे. ओके, फिर तुम्हारा ऑडियो वीडियो के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, वो ड्राइवर्स चाहिए. ओके, so these all drivers need to be installed. ड्राइवर्स जो होते हैं ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन काम करने के लिए, एक ऐप काम करने के लिए. जैसे ऑफिस 365 ऐप काम करने के लिए क्या चाहिए, वीएलसी मीडिया प्लेयर ऐप काम करने के लिए क्या चाहिए. ओके, वो हो जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर उस सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के लिए जो चीजें चाहिए, दोज बिकम योर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. ओके, सो अब वो प्रिंटर लेकर आया और उसने सीधे सीधे कनेक्ट कर दिया, यूएसबी पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया, पर वो प्रिंट आउट नहीं ले पा रहा बिकॉज देयर इज नो प्रिंटर ड्राइवर कनेक्टेड. सो व्हाट ही नीड्स टू इंस्टॉल, द सॉफ्टवेयर्स नेम इज प्रिंटर ड्राइवर. And is it a system or application software? It is a system software. ठीक है, इन दो आंसर्स के लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट, कन्वर्ट 2 MB to bytes. Convert 2 MB to bytes. MB is equal to 1000 kilobyte. 1000 or kilobyte is equal to, और 1024 कर दो, 1000 क्यों करना, बी प्रिसाइज 1024. ओके, सो 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट. 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स. ठीक है, यहाँ पे 2 MBs हैं. सो व्हाट विल बी द आंसर? 1024 इंटू 1024 इंटू 2.
What will be the answer? See, I am writing in the chat box. 1 MB is equal to 1024 KB. Okay. 1 KB is equal to 1024 bytes. Okay. Therefore, 2 MB is equal to 1024 into 1024 into 2. Okay, bytes. This will be the answer. If you want to calculate it and write down the answer, then also it is okay. If you feel कि calculations में मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ and you want to leave it like this, then also it is okay. Okay, either of the ways it is okay. आपको पूरा 1024 into 1024 into 2 करने की जरूरत नहीं है. आप बस concept अगर आपका सही है, then you will get 1 mark. This is not maths exam. This is just computers exam. हम बस ये देखना चाहते हैं that do you know that 1 MB is equal to 1024 KB and 1 KB is equal to 1024 bytes. This is all what we want to test. ठीक है? मैम वो जो आपने 2/3 B² वाला कराया था ना, उसका आउटपुट नहीं आ रहा ना. वो अगर मैं डबल कोट्स में डाल दूं, डबल कोट्स में डाल रही हूँ तब भी एरर दिखा रहा है. सिंपली बिना डबल कोट्स के डाल रही हूँ तब भी एरर दिखा रहा है. नहीं, प्रिंट स्टेटमेंट में डालने की बात कर रहा हूँ. यस मैम, वो 2/3 B². नहीं, अभी प्रिंट स्टेटमेंट में डालने की जरूरत ही नहीं है 2/3 वाले को. उसने कहा कि पाइथन में कैसे डालोगे, मतलब वो पाइथन में ये बस देखना चाहता है कि 2 into C into D नॉर्मल मैथमेटिकल वाले का आप पाइथन में कैसे करोगे, 2/3 नॉर्मल पाइथन वाले का आप कैसे करोगे. वो सिर्फ ऑपरेटर्स आपकी समझ का देखना चाहता है. दैट्स इट. यू डोंट हैव टू राइट दैट प्रिंट स्टेटमेंट. इसलिए मैंने प्रिंट नहीं लिखा वहां पे द आंसर. You have to write it normal mathematically. सिर्फ B² का या तो B into B कर सकते हो या B into 2, मतलब B to the power of 2. वो सिर्फ इतना देखना चाहता है कि to the power of आपको आता है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स में कैसे करते हैं वो आपको आता है कि नहीं, बस दैट मच. इसलिए वो 1 मार्क का क्वेश्चन है. ओके मैम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the keywords, variables or invalid identifiers from the following. For, देखो F कैपिटल है, ठीक है, hash, while, prints, in. अब बताओ इसमें से कौन से keywords हैं, कौन से variables हैं, कौन से invalid identifiers हैं. मैम, for invalid identifier. नहीं, फॉर अगर इनवैलिड आइडेंटिफायर है तो क्या कैपिटल F वाला फॉर वेरिएबल नहीं है? क्या वो वैलिड वेरिएबल है कि नहीं? यस मैम है. है ना? सो फॉर इज वैलिड वेरिएबल. वैसे ही प्रिंट्स बताओ, प्रिंट इज अ कीवर्ड, ठीक है, लेकिन प्रिंट्स इज नॉट अ कीवर्ड. इज इट अ वैलिड वेरिएबल? यस, इट इज अ वैलिड वेरिएबल. ठीक है. सो फॉर एंड प्रिंट्स ये दोनों आपके वैलिड वेरिएबल्स हैं. ओके, फॉर एंड प्रिंट्स बोथ आर वेरिएबल्स. इन इज अ कीवर्ड. इन इज अ कीवर्ड. ओके, और हैश वाइल क्या हो जाता है? इट इज इनवैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि वो वेरिएबल भी नहीं बनता. वेरिएबल भी हैश से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो कीवर्ड भी नहीं बनता, वो इनवैलिड आइडेंटिफायर बनेगा. सो फॉर इज अ वेरिएबल, हैश वाइल इज इनवैलिड आइडेंटिफायर, प्रिंट्स इज अ वेरिएबल, इन इज अ कीवर्ड. है कि नहीं? इन, नॉट इन, ये सारे हम लोग बुलियन में यूज करते हैं ना. सो इट इज अ कीवर्ड.
Convert the following for loop into while loop. For m in range 11 1 minus 2 print m. for को while में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, स्टार्टिंग वाले को पहले ऊपर लिख दो, ठीक है, मिडिल वाला आपके while के कंडीशन में आ जाएगा और लास्ट वाला आपके while के कंडीशन के नीचे आ जाएगा. फर्स्ट वाला ऊपर, मिडिल वाला while के साथ, नीचे वाला लास्ट वाला नीचे. फर्स्ट ऊपर, मिडिल while, लास्ट नीचे. रिमेंबर दिस. सो m is equal to 11. m is equal to 11 while m greater than 1. Okay, I'll write in the chat box. m is equal to 11. उसके बाद दोगे while m greater than 1. Okay, उसके बाद आप indentation दोगे. Okay, I am unable to give indentation here. Okay, so I'm just writing indentation. फिर दोगे प्रिंट और ब्रैकेट में कैपिटल M, उसके बाद कैपिटल M इज इक्वल टू M माइनस 2 प्रिंट के साथ के इंडेंटेशन में. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Next question is, write a script in Python to accept two angles and find whether it is a linear pair or not. Hint उसने दे दिया, sum of angles of linear pair is 180. मतलब आप पाइथन में int देके int input, ओके, x is equal to int input, फिर आप दे दोगे एंटर द फर्स्ट एंगल, फिर सेकंड में आप दोगे y is equal to int input, एंटर द सेकंड एंगल, फिर आप इफ एल्स में डाल दो इफ x प्लस वाई, या फिर आप दे सकते हो z is equal to x प्लस वाई. उसके बाद आप दे सकते हो इफ z is डबल इक्वल टू 180 प्रिंट, आप दे सकते हो दैट दिस इज द सम ऑफ एंगल्स दैट इट इज अ लीनियर पेयर, else print not a linear pair. I think that's very simple, quite simple. Yes, ma'am. Do you want me to write the answer in the chat box? Say suppose x No, is ma'am. equal to, no? Okay, good, thank you. So from this d bit, we'll do it tomorrow. Okay, d bit we'll do it tomorrow. और 29 से आप लोगों का activity based assessment तो है ही. So 29th I want to listen to Akash and Arushi. Then मैम सैटरडे वर्किंग इज दैट. हाँ, 4th Saturday तो नहीं है ना. ओके मैम. Let us consider that it is working और उसी हिसाब से हम लोग ये कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं. And also I will be sharing one forms link with you all. I want the final lab manual. और इस बार सारे पूरे lab manual के screenshots आप निकाल के मुझे दोगे उसमें, उस form में. Okay, so I'll be creating a form and I'll be sharing it with you all. Okay, and I want you all to give me the prints of the lab Ma'am. manual. हाँ, मैम हमें प्रोग्राम्स भी, मतलब जैसे लैब मैनुअल में तो हमने लिखे हैं ना, बट हमें लैब जैसे हमें स्क्रीनशॉट भी लेने पड़ेंगे पीसी से. मतलब प्रिंट आउट्स की बात कर रहे हो? यस मैम, कुछ प्रोग्राम्स के
जैसे आपने कुछ उसके प्रोग्राम आउटपुट्स अगर कुछ इस तरीके से आ रहे हैं जैसे कि पिरामिड टाइप के वगैरह कुछ आ रहे हैं तो फिर उनके स्क्रीनशॉट्स लेके प्रिंट निकाल सकते हो तो प्रिंट निकाल दो, या फिर अगर उन्हें सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ कर दो। आउटपुट सबके होने चाहिए। आउटपुट्स में अगर आप प्रिंट्स निकाल के डाल पा रहे हो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन राइट डाउन द आउटपुट्स, बट होने चाहिए। ओके, ईदर राइट इट डाउन और टेक द प्रिंट आउट, बट डू इट। इट मैम, शुड बट नॉट पिरामिड वाले जैसे आपने पहले बोला था, तो पहले तो हमने सारे कर लिए, मतलब माई सीक्वल तक एंड मतलब पूरा कंप्लीट है। तो इसके बाद जो आपने पिरामिड के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे वो भी करने हैं इसमें? नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। वो नहीं करने ना? ओके मैम। एंड दोज हु हैव नॉट सबमिटेड दैट प्रोजेक्ट, ठीक है, काफी सारे बच्चों ने तो इंडिविजुअली किया हुआ है। दोज हु हैव नॉट सबमिटेड काइंडली डू दैट latest by 30th January, because after that I'll be submitting the final marks, ठीक है। और ये जो आप ये भी करोगे दिस लैब मैनुअल सबमिशन, दिस आल्सो हैज टू बी properly done by 30th January. मैम, वो प्रोजेक्ट गेम वाला ही ना जो आपने बोला था कि हमें गेम से रिलेटेड? राइट। ओके। Okay, I'll put up this form. Okay, I'll share the link with all of you, and kindly finish it off and give it to me by 30th January. At max मैं आपको फाइल लिमिट सिर्फ 10 पेजेस तक ही दे पाती हूँ, फाइल नंबर। सो एंश्योर दैट यू टेक PDF फॉर्मेट, और फिर PDF फॉर्मेट में आप मुझे अपलोड करके दे दो। ओके मैम। ओके, ओके, सो थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you. Bye bye.